the best work of T.S. Eliot. And you know very well that this poem is very tough, no doubt in it, and it needs a great attention from the side of readers. If we talk about T.S. Eliot, T.S. Eliot has written very tough poetry, and it is said about T.S. Eliot that a poetry which can be easily understood cannot be a good poetry. As far as the best land is concerned, in this poem, Eliot has uses many languages, and the best land it has five sections. The first section is the burial of the dead. The second section is a game of chess, and the third section is the fire sermons, and the fourth section is death by water, and the last and fifth section is what the thunder said. So these are the five sections of this poem. The date of the publication of this poem is very important. This date is often asked in examination. The West Land it was published in 1922. जो वेस्ट लैंड है ये 1922 में पब्लिश हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 5 सेक्शन है और ईच लाइन हैज different meanings. The poem is full of images. The poem is full of symbols because T.S. Eliot has used different symbols in this poem, and he has also used images. So the imagery of the poem is also remarkable and fine. Before going further, first I would like to tell you something about the title of bestseller. Okay. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को इस पोएम का टाइटल समझाना चाहेंगे, because if you learn, if you know, if you understand the title of the poem properly, it means you have understood 40% of the poem. अगर आप इसका टाइटल अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 40% पोएम आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए इसका जो टाइटल है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रेल स्टोरी। एक ग्रेल कहानी है जिसको हम हॉली ग्रेल भी कहते हैं और फिशर किंग से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। इसकी एक कहानी है जो फिशर किंग से रिलेटेड है और इसमें एक हॉली ग्रेल का जिक्र किया गया है। और फिशर किंग जो था ही वाज रूलिंग ओवर द लैंड दैट वाज बेस्ट लैंड। फिशर किंग एक लैंड पर शासन कर रहे थे जिसे जिसे बेस्ट लैंड कहा जाता है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट लैंड? बेस्ट लैंड मींस बैरन लैंड। बेस्ट लैंड का मतलब होता है बंजर लैंड, ऐसी जमीन जहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो वेजिटेशन की, वो बेस्ट लैंड कहलाता है। ओके, अगर हम बेस्ट लैंड को ही ले लें तो बेस्ट लैंड के 3 मीनिंग होते हैं। वी हैव 3 मीनिंग्स ऑफ बेस्ट लैंड। पहला मीनिंग तो ये है कि टी.एस. एलियट सेज दैट लंदन हैज बिकम बेस्ट लैंड। लंदन जो है वो बेस्ट लैंड बन गया है, ये पहला एक इसका मीनिंग। दूसरा इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, आई मीन द हार्ट ऑफ अ मॉडर्न मैन हैज बिकम just like Westland. Why heart has been described as Westland? Because there is no touch of spirituality, there is no feeling of love, there is no feeling of affection,
There is no feeling of mercy in the heart of human being. So the heart of modern person has become just like Western. आधुनिक जो व्यक्ति है, जो मॉडर्न व्यक्ति है, उनका जो हृदय है ये भी वेस्टलैंड हो चुका है, क्योंकि उनके हृदय में स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी है। प्रेम, स्नेह, अफेक्शन, कंसिडरेटनेस, ओके, दूसरों के प्रति सिंपैथी एंड ऑल द ह्यूमन क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज, दे ऑल हैव कम टू एन एंड। ये सारी क्वालिटीज खत्म हो चुकी है। सो दिस इज द रीजन दैट द हार्ट ऑफ अ मॉडर्न मैन हैज बिकम जस्ट लाइक अ वेस्टलैंड। मॉडर्न मैन का जो हार्ट है ये भी वेस्टलैंड बन चुका है। क्लियर हो रहा है? अब दिस वेस्टलैंड ऑल्सो इंडिकेट्स द होल वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया जो है दैट हैज ऑल्सो बिकम वेस्टलैंड। आज पूरी दुनिया वेस्टलैंड हो चुकी है, बिकॉज लव है, अफेक्शन है, ठीक है, मर्सी है, ये क्वालिटीज आज इस दुनिया से खत्म हो रही हैं। People are running after materialistic progress. People have become completely materialistic, so they have nothing to do with spirituality. And spirituality is just like a water. And you know very well that without water, the land becomes barren, the land becomes wasteland. So there is no water of spirituality everywhere in this world. So this is the region that the whole world has become wasteland. So wasteland has, is that clear? क्लियर हो रहा है बेटा इतना? यस सर। हाँ, यस नो में क्लियर जवाब सर। देते रहिएगा। क्लियर सर। और अगर कोई प्रॉब्लम कहीं से आए, कोई चीज भी ना समझ में आए, तो तुरंत हमसे पूछिएगा, ठीक? अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक किंगफिशर की कहानी बता रहे हैं। हाँ, हेलो सर, आपने 3 मीनिंग बताया वेस्टलैंड के। फर्स्ट इज लंदन इज द वेस्टलैंड, सेकंड इज द हार्ट मॉडर्न, द हार्ट ऑफ मॉडर्न मैन, एंड थर्ड वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। इन लंदन इंडिकेट्स द होल वर्ल्ड, ओके? ओके। The whole world has become wasteland because in the present time people, they are running after materialistic things and they have nothing to do with spirituality, okay? And I have just told you that spirituality, it is just like a water, and you know very well that without water the land becomes wasteland, okay? So without spirituality, the heart of human being, the heart of modern man has become wasteland. Is that clear? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको समझा रहे हैं, एक स्टोरी है ग्रेल लीजेंड, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है, हालांकि टीएस एलियट ने कहीं पे ऐसा क्लियर नहीं किया है, कुछ जगह उन्होंने रेफरेंस दिए हैं कि ये जो इसका जो टाइटल है वो उन्होंने जो है वो फिशर किंग की कहानी से लिए गए, ठीक है, ग्रेल लीजेंड से लिए गए। तो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेल लीजेंड। देखिए ग्रेल लीजेंड क्या है इसको आप समझिए, और उससे भी पहले आप हॉली ग्रेल समझिए। हॉली ग्रेल जानते थे? कभी सुना किसी बच्चे? इज देयर एनी स्टूडेंट हु हैज हेard समथिंग रिलेटेड टू हॉली ग्रेल? हॉली ग्रेल के बारे में सुना किसी ने? चलिए कोई बात नहीं। आप नो लोगों ने, सर। हाँ, आप लोगों ने सर लास्ट सुना है। सपर, हाँ, लास्ट सपर के बारे में सुना? लास्ट सपर जी, जो जीसस एक, क्राइस्ट ने। हाँ, यस, एक पेंटिंग है, okay, that is जी। very famous painting, and it is called the last supper। देखिए, हाँ सर। सर, उसमें वो अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने वो पेंटिंग एक पहचाना, हाँ साथ। हाँ, बहुत सही पहचाना। चलिए हम आपको बताते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लें, ओके? देखिएगा, when Jesus Christ was crucified, जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, उन्हें सूली पर लटकाया, तो उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई थी, उनके पैरों में कीलें ठोक दी, तो उनकी बॉडी से ब्लड निकला था, उनकी बॉडी से ब्लड निकला था, और उस ब्लड को इनका एक शिष्य था, डिसाइपल था, उसका नाम शायद जेम्स था, थोड़ा सा मिस हो रहा है नाम हमारे दिमाग से, लेकिन जहां तक हमारा आइडिया जेम्स ही था उसका नाम, उसका नाम जेम्स था। तो जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड बॉडी से निकला,
he collected that blood in a bowl. उसने वो सारा ब्लड एक कटोरे में इकट्ठा कर लिया. ये कटोरा कौन सा था? It was that bowl which was used by Jesus Christ during his last supper. जब उन्होंने लास्ट सपर किया था. सपर आप लोग जानते हैं क्या होता है? रात का खाना. हाँ, यस, रात्र का खाना ये सपर कहलाता है. तो जब उन्होंने सपर किया था, लास्ट सपर, तो एक कटोरे में उन्होंने खाना खाया था विद हिज डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ. तो इट वाज द सेम बाउल, ये वही कटोरा था जिस कटोरे में उसने जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड था, ओके, उस ब्लड को कलेक्ट करके रखा था. क्लियर हो रहा? आवाज क्लियर आ रही है हमारी? क्लियर है. तो वो उसने ब्लड जो था कहाँ कलेक्ट कर लिया था? एक कटोरे में. और वो कटोरा दैट डिसअपियर, वो कुछ समय के बाद डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. उसको हॉली ग्रेल कहा जाता है. उसको क्या कहा जाता है? हॉली ग्रेल कहा जाता है. ओके, ये ग्रेल लीजेंड है. अब ये ओके, हेलो, होली ग्रेल के इसकी स्पेलिंग क्या होगी? स्पेलिंग ग्रेल की HOL बाई हॉली ग्रेल, GRAIL. ठीक है, हॉली ग्रेल. ओके, ये ग्रेल लीजेंड हम आपको बता रहे हैं. ओके, तो वो जो कटोरा था उसे क्या कहा जाने लगा था? हॉली ग्रेल. एंड दैट डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर हो, उड़ गया, कहीं आकाश में चला. कभी कभी वो कहीं नजर भी आ जाता. समटाइम्स इट कुड बी सीन एनीवेयर, कभी कभी कहीं भी वो नजर आ जाता. एंड दैट वाज प्रोटेक्टेड बाय सम फेरीज, कुछ परियां थी जो उस हॉली ग्रेल को प्रोटेक्ट करती थी, उसकी रक्षा करती. उसी हॉली ग्रेल को इंग्लैंड के एक राजा हुए हैं, उनका नाम देखो मिस हो रहा है थोड़ा सा दिमाग से, किंग आर्थर. किंग आर्थर ने उसी हॉली ग्रेल को लाने के लिए कई योद्धाओं को भेजा था. ठीक है, ऐसा ये भी एक लीजेंडरी स्टोरी है, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन. तो एक किंग थे, देयर वाज ए किंग एंड हिज नेम वाज फिशर किंग. एक राजा थे जो फिशर किंग के नाम से फेमस थे. that holy grail could also be seen in his kingdom. वही हॉली ग्रेल उनके किंगडम में भी देखा गया. तो राजा ने जो था उसको डिफाइल करने की कोशिश की, उसको पकड़ने की कोशिश की, उसकी प्योरिटी को खराब करने की कोशिश की. और उसकी जो परियां थी उनको, उनके साथ भी कुछ उन्होंने मिसबिहेव करने की कोशिश की. तो इसके प्रभाव से उनकी सारी जो लैंड थी दैट बिकेम बेस्ट लैंड. सारी लैंड उनकी बेस्ट लैंड बन गई थी. और ही हिमसेल्फ बिकेम इम्पोर्टेंट, वो राजा खुद इम्पोर्टेंट बन. तो ये बेस्ट लैंड का टाइटल ये इसी हॉली ग्रेल लीजेंड से टीएस इलियट ने लिया है. तो उनकी लैंड जो थी बेस्ट लैंड हो गई थी. और देखिए ये लीजेंडरी स्टोरी है. लीजेंडरी स्टोरी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है. हो सकता है कि आप एक कहानी को हॉली ग्रेल लीजेंड को कहीं और पढ़ें तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस हो, लेकिन मेन आइडिया उसका यही होगा जो हमने आपको बताया. ओके, तो हिज लैंड बिकेम बेस्ट लैंड. तो यहाँ से टीएस इलियट हैज टेकन द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम दिस फिशर किंग स्टोरी, फ्रॉम दिस ग्रेल हॉली ग्रेल लीजेंड. जो हॉली ग्रेल लीजेंड है यहाँ से इन्होंने इस बेस्ट लैंड का टाइटल. क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्लियर? ठीक है. हाँ, और बेस्ट लैंड हम बता चुके हैं कि इट हैज 5 सेक्शंस. बेस्ट लैंड के 5 सेक्शन है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर व्हेन देयर आर 5 सेक्शंस then there will be no coordination. No, it is not right. There is proper coordination among all the sections of the student.
वेस्टलैंड में कहानी सब अलग अलग है, अलग अलग घटनाएं, लेकिन फिर भी एक मेन कैरेक्टर है जो इसका प्रोटेगोनिस्ट है। वो सारे घटनाओं को, सारे इवेंट्स को, सारे सेक्शन को जोड़ करके रखा। अब इसका टाइटल समझ गए, अब हम चलते हैं इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है। प्रोटेगोनिस्ट आप जानते हैं मेन कैरेक्टर, वो है टायरेसियस। ध्यान से सुनिए, कौन है वो? है टायरेसियस। ओके, ये जो टायरेसियस है ये बहुत ही विचित्र स्पेशल तरह का व्यक्ति। ठीक है, पहली बात तो ये है कि टायरेसियस इज ब्लाइंड फिजिकली, स्टिल ही कैन सी एवरीथिंग। टायरेसियस जो है वो अंधा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर चीज को देख सकता है। ही कैन सी एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ हिज स्पिरिचुअल आईज। वो अपनी आध्यात्मिक आंखों से जो है हर चीज को देख लेता है, जबकि रियल में वो अंधा है, टायरेसियस। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये जो टायरेसियस है, हम नहीं लाए, रह गया। तो टायरेसियस जो है, he is blind physically, but still he can see everything with the help of his spiritual eyes. दूसरा पॉइंट ये है कि टायरेसियस इज बाइसेक्सुअल। टायरेसियस बाइसेक्सुअल यानी वो मेल भी है और फीमेल भी है, या यूं कह सकते हैं कि दी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल दे आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति में दोनों तरह के ऑर्गन्स पाए जाते। ओके, टायरेसियस इज द सिंबल ऑफ सोल। टायरेसियस जो है वो एक सोल का सिंबल है, एक आत्मा का सिंबल। और वेस्टलैंड क्या है? व्हाट टायरेसियस सीज, व्हाट ही रियलाइजेस, व्हाट एक्सपीरियंसेस ही गेट्स। जो अनुभव वो महसूस करता है, जिन चीजों को वो देखता है, बस वही सब ये पोएम है, वही जो है वो वेस्टलैंड। ये टायरेसियस है जो पांचों सेक्शन में एक यूनिटी बनाए, है ना? क्योंकि इफ यू रिमूव टायरेसियस there will be no unity among all these five sections of Westland. It is only Tiresias who connects one section to another section to third and fourth and fifth. तो टायरेसियस जो है ये पूरी पोइम के लिए एक यूनिटी प्रदान करता है, एक एक कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है टायरेसियस। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन। देखिए पहला सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड। इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, और जो दिक्कत है उससे पूछते हैं। इस पहला सेक्शन कौन सा है? द बरियल ऑफ द डेड। बरियल माने होता है दफनाना, और डेड माने कोई मर चुका है उसको दफना। अब क्या चीज है जो मर चुकी है? ध्यान से सुनो। मॉडर्न टाइम में, इन द मॉडर्न टाइम, स्पिरिचुअलिटी हैज डाइड। स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, वो मर चुकी है, एंड दैट इज बरीड। और उसको हमने कहीं अपने हृदयों में दफन कर, यानी स्पिरिचुअलिटी हैज डाइड, आध्यात्मिकता मर चुकी है, एंड वी हैव बरीड दिस स्पिरिचुअलिटी इन आवर हार्ट्स। इस स्पिरिचुअलिटी को हमने कहीं अपने हृदयों में दफन कर दिया है। तो ये इसका टाइटल का मतलब है, द बरियल ऑफ द डेड। इट मीन्स in the modern time spirituality has died and human being has buried this spirituality at some corner of their heart. मनुष्य ने इस स्पिरिचुअलिटी को अपने हृदय के किसी कोने में दफन करके रख दिया है, यानी स्पिरिचुअलिटी जो है वो मर चुकी। ओके, ये बात क्लियर हो गई?
क्लियर सर। ठीक है, अब देखिए पोइम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसको समझिए। इसको हमने बताया ना कि एक एक लाइन को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पोइम बहुत है। अगर आप इसको समझ जाते हैं और नहीं समझते हैं तो यू विल थिंक दैट इट इज अ वेरी बोरिंग पोइम, तो आपको ये बोरिंग लगेगी, इसीलिए बच्चे इसको बारीकी से नहीं पढ़ते। देखिए स्टार्टिंग हमारी है कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये लाइन पूछी जाती है कि विच पोइम स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ अप्रैल। ये ध्यान रखें, कौन सी पोइम जो है वो अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होती है, तो वो बेस्ट लाइन है। अब एक पोइम और है टीएस इलियट की, there is also one another poem in which the month of April is mentioned, उसमें भी अप्रैल का जिक्र हुआ है, और वो जो है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोक्राफ्ट। इसमें भी जो है अप्रैल के मंथ का, अप्रैल की नाइट का जिक्र किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच पोइम स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो आपकी बेस्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझ नहीं पाते बच्चे कि अप्रैल का महीना सबसे क्रूलेस्ट मंथ क्यों है, सबसे क्रूअल महीना क्यों, इसको आप समझे। हेलो, लवर्स के लिए शायद, हाँ लता क्या कह रहे, बता बेटा। ये शायद लवर्स के लिए अप्रैल का मंथ जो है वो क्रूलेस्ट। नहीं, साइज से नहीं काम चलेगा, लवर्स के लिए बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। नो नो, अप्रैल इज नॉट अ विंटर सीजन, Spring यू मस्ट season. अंडरस्टैंड। No, sir. No, sir. In England, the weather is changed. No, Sir, spring listen season to हो me, गया sir. okay, listen to me. In England, spring season starts हाँ from sir. the month of April and May. इंग्लैंड में स्प्रिंग सीजन अप्रैल और मई में शुरू होता है, ध्यान रखिए। बसंत ऋतु, इंडिया का बसंत ऋतु अलग। यू आर स्टडिंग द स्प्रिंग सीजन ऑफ इंग्लैंड, ओके। तो स्प्रिंग सीजन को हाउ वी कैन से दैट स्प्रिंग सीजन इज द कूलेस्ट, इट इज कंसीडर्ड द बेस्ट सीजन। स्प्रिंग सीजन तो सबसे बेस्ट सीजन है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड कूलेस्ट, क्वेश्चन है। चलिए आप, हाँ कुछ बताएंगे लगता, चलें। कुछ लवर्स के मैटर की वजह से। नहीं, लवर्स है, सर मंथ लवर्स, ऑफ इनएक्टिविटी, एक्टिविटी बंद हो जाती है, सब सब लेथार्जिक। नहीं, अगर लेथार्जी होगी तो लेथार्जी डज नॉट मीन क्रूरलिटी। इफ यू फील लेजीनेस, it gives you pleasure, it gives you happiness, because laziness always gives happiness, laziness always gives pleasure, so we can't say that laziness is the cruelest thing। चलिए अब हम आपको बताते हैं, कोई बात नहीं, अब आप समझिएगा, कभी भूलिएगा नहीं इसको। देखिए अप्रैल इट इज कंसीडर्ड द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु का महीना है। बसंत ऋतु में क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होती है, और जो जड़ें हैं, जो सूखी जड़ें हैं, सूखे पेड़ हैं, वो भी हरे आते, समझ रहे, वो उनमें भी हरियाली आ जाती है। जो बंजर लैंड है वहां भी पेड़ निकल आते हैं बसंत ऋतु में। सो देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह जो है वो हरियाली ही हरियाली। इज दैट क्लियर, ऐसा बसंत ऋतु में होता है। अब देखिएगा, द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द हार्ट ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का जो हार्ट है ये बेस्ट लैंड है। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्प्रिंग सीजन इस हार्ट को भी प्रेरित करता है कि ये अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगाए। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये स्प्रिंग सीजन, क्योंकि स्प्रिंग सीजन डेड लैंड में भी पौधे उगाते हैं स्प्रिंग सीजन में। ड्राइड जो रूट्स होते हैं दे ऑल्सो बिकम फ्लोरिस्ट, वो भी फलने फूलने लगती, वो भी हरी भरी हो जाती है बसंत। तो बसंत ऋतु में ह्यूमन हार्ट जो है इससे भी प्रॉम्प्ट किया जाता है कि ये भी स्पिरिचुअलिटी का पौधा हो। हम इंसान अपने हृदय में स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी मर चुकी है, उसको दफना दिया गया। अब देयर इज नो चांस फॉर द प्लांट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू ग्रो इन द हार्ट।
अब हार्ट में स्पिरिचुअलिटी का जो पौधा है उसके उगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम तो स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर चुके, उसको दफना चुके। तो हम हार्ट में अपने हृदय में स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगाना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का पौधा अब उग नहीं सकता है, ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होने लगते, परेशान। इसीलिए अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इसीलिए अप्रैल का महीना क्रूअल होता है, क्योंकि हमें कष्ट देता है। इस महीने में हम अपने हार्ट में स्पिरिचुअलिटी का प्लांट उगाना चाहते हैं, बट इट इज बियॉन्ड आवर रीच। लेकिन ये हमारी पहुंच से परे है, बिकॉज वी हैव किल्ड स्पिरिचुअलिटी एंड वी हैव बरीड स्पिरिचुअलिटी। हमने इसको दफना दिया है इतनी गहराई से कि नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द प्लांट ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू ग्रो sorry, to grow into the heart. So during the spring season, plants also grow even the best land, but unfortunately, the plant of spirituality cannot grow into the heart of human being. So we human being try to grow the plant of spirituality, but it is not in our power. That's why we suffer. You know that when the desire of a person is not fulfilled, the person has to suffer. That's why the April is the cruelest month for human being. Clear हो गया? Yes, यानी sir. अब समझ Clear, में आ sir. गया? हाँ। अब ये एक लाइन का अर्थ लेता है, ऐसे पढ़ने को फिर भी सर हम बढ़िया थोड़ा लग रहा है सुनने में, बढ़िया लग रहा है। फिर भी हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में पढ़ाया तो 1-1.5 महीना ही लेगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब इस चीज को जब हम आगे पढ़ेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल का महीना क्रूअल महीना होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में हम मॉडर्न लोगों को बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग माने पैदा करना। अप्रैल का महीना पैदा कर देता है, उगा देता है लिलेक्स। लिलेक्स एक प्रकार की झाड़ियां होती हैं जिनमें फूल निकलते हैं आउट ऑफ द डेड लैंड। अप्रैल के महीने में जो बंजर लैंड होती है, उस बंजर लैंड से लिलेक नामक झाड़ियां उगने लगती हैं, उन पर फूल खिलने लगते हैं। अर्थात जो बंजर लैंड है वो भी हरी भरी हो जाती है, लेकिन मनुष्य का हृदय जो बेस्ट लैंड बन चुका है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी का पौधा मर चुका है, अब वहां स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगने का कोई चांस नहीं। क्लियर? तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल का महीना ये क्रूअल मंथ होता है। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग लिलेक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। ये मरी हुई जमीन, बंजर जमीन से भी लिलेक नामक झाड़ी को पैदा कर देता है, उस पर फूल लगने लगते हैं। और मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। और बेस्ट अप्रैल के महीने में ही हम मनुष्यों के अंदर दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक मेमोरी का, एक डिजायर का। मेमोरी किस बात की? कि कभी हमारे हृदय में बेस्ट, कभी हमारे हृदय में स्पिरिचुअलिटी का पौधा फला फूला था, ये मेमोरी है। और डिजायर, अब हमारी फिर से इच्छा होती है कि उसी स्पिरिचुअलिटी के पौधे को हम अपने हृदय में उगाएं। स्टेरिंग माने एक्साइट कर देना, जगा देना। डल रूट्स, स्प्रिंग का जो महीना है, बसंत ऋतु का महीना, वो डल रूट, सूखी जड़ों को भी हिला देता है विद स्प्रिंग रेन। और बारिश होती है तो सूखी जड़ें भी हरिया आती है। लेकिन मनुष्य का हृदय जो बेस्ट लैंड बन चुका है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी का पौधा मर चुका है, अब वहां उस स्पिरिचुअलिटी के पौधे के उगने के कोई चांस नहीं है। बसंत ऋतु में, इवन इन द स्प्रिंग सीजन, दिस प्लांट ऑफ स्पिरिचुअलिटी डज नॉट ग्रो इन द हार्ट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मैन के दिमाग में आता है कि एक समय था कि जब उसके हृदय में स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगा हुआ। तो एक तो ये मेमोरी, फिर वही स्पिरिचुअलिटी का पौधा फिर से उगाने की उसकी इच्छा होती है। तो
वो मेमोरी और डिजायर दोनों मिक्स हो जाती है बसंत ऋतु में। और जब वो कोशिश करता है उस स्पिरिचुअलिटी के पौधे को अपने हृदय में उगाने की, और जब वो देखता है कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस पौधे के उगने की, तो उसे कष्ट होता, दिक्कतें होती, परेशान हो जाता। दैट्स व्हाई अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ फॉर मॉडर्न। क्लियर? पढ़ के देखें 4 लाइन्स के भी क्या पूछती। सर ये स्ट्रिंग शब्द का मीनिंग बता दीजिए। किसका बेटा? सर स्ट्रिंग स्टरिंग का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, एक्साइट करना, प्रेरित करना। ठीक है? ओके। और पूछे जहां पे दिक्कत है पूछे। सर डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, ये लाइन बता दीजिए सर। देखिए, डल रूट्स कहते हैं सूखी जड़। विद स्प्रिंग रेन, जब बसंत ऋतु में बारिश होती है तो जो सूखी जड़ें हैं स्टेरिंग, वो भी एक्साइटेड हो जाती, हिल जाती, यानी उनसे भी पौधे निकलने शुरू। क्लियर? ओके। आप किसी स्टूडेंट को इन 4 लाइन में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे जो है इन 4 लाइन के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से चेंज हो जाए। उसमें कुछ पूछना तो नहीं? क्लियर हो गया बेटा? यस क्लियर सर। ओके, अब आगे चलते। यस सर। अब ये कौन कह रहा है और कहां कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए। ये टायरेसियस है, जिनके बारे में हमने बताया कि टायरेसियस इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस वर्क। इस पूरे वर्क का जो प्रोटेगोनिस्ट है वो टायरेसियस। इट इज द स्प्रिंग टाइम। टायरेसियस इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन लंदन। टायरेसियस लंदन में इधर उधर घूम रहे हैं और अचानक उन्हें उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है। एक लेडी है जिसका आगे चल के आपको नाम पता लगेगा। उस लेडी का नाम है मैरी, MARIE या MARY, दोनों तरह से लिख सकते। उस लेडी का नाम है मैरी। तो उस लेडी से टायरेसियस पूछते हैं कि हे मैरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्प्रिंग सीजन? आप स्प्रिंग सीजन के बारे में क्या सोचती हैं? कैसा सीजन है? कितना अच्छा है? क्या क्वालिटी है इसकी? तो वो लेडी टायरेसियस को अब जवाब देती। इसमें क्वेश्चंस मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे वर्क में क्वेश्चन मेंशन नहीं है, केवल आंसर है। तो टायरेसियस क्या करता है? टायरेसियस आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मेरी, व्हाट शी थिंक्स अबाउट स्प्रिंग सीजन, व्हाट इज हर ओपिनियन टू स्प्रिंग सीजन। तो लेडी कहती है कि मुझे तो स्प्रिंग का कोई ज्ञान नहीं। स्प्रिंग मतलब वही स्पिरिचुअलिटी का। मुझे तो स्प्रिंग के महीने का कुछ याद ही नहीं। मैंने तो 2 ही महीने देखे, एक ठंड देखी है और एक गर्मी देखी। तो ये काहे का सिंबल? यानी ठंड देखी है, उसने मुसीबतें देखी हैं, और हमने गर्मी देखी है, आनंद का मौसम देखा है। हमें स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ नहीं। तो टायरेसियस इज वेरी मच शॉक्ड when he listens this answer of this lady, that this lady has no idea about spring season. So when a person does not know spring season, how that person may try to grow the plant of spirituality in his life. जब हमें यही नहीं मालूम है कि बसंत ऋतु होती क्या, तो हम कैसे सोचें कि किस सीजन में, किस कंडीशन में हमारा हार्ट जो बेस्ट लैंड बन चुका है, उसमें किस सीजन में किस ढंग से हम स्पिरिचुअलिटी का पौधा उगाएंगे, इसका तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं। तो अब कहां से स्टार्ट होंगी 4 लाइन के बाद? अब टायरेसियस जो है
वो मैरी से क्वेश्चन पूछता है कि मेरी, एक यंग वुमन है, उससे कहता मेरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्प्रिंग सीजन, तुम स्प्रिंग सीजन के बारे में क्या सोचती हो? तो मेरी रिप्लाइज द क्वेश्चन ऑफ टायरेसियस। अब मेरी यहाँ पर आंसर देती, इसमें क्वेश्चन नहीं है, केवल आंसर है। अब 4 लाइन के बाद अब ये विंटर, यहाँ से मेरी का आंसर है किसके लिए? टायरेसियस के लिए। तो मेरी उससे कहती है कि हमें स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम तो ठंड का सीजन और गर्मी का सीजन ही कुछ। तो मेरी टायरेसियस को कहती है हम तो ठंड के बारे में जानते हैं, और ठंड के दिनों में तो हम अपने आप को वार्म रखते थे, खूब ऊनी कपड़े पहनते थे और आग के पास बैठ करके अपने आप को वार्म करते। तो विंटर केप्ट अस वार्म, ठंड हम स्वयं को गर्म करते थे, गर्म कर लेते थे, बहुत ठंड पड़ती थी। कवरिंग अर्थ, इतनी ठंड होती कि पूरी पृथ्वी को बर्फ ढक लेती थी। इन फॉरगेटफुल स्नो, फॉरगेटफुल स्नो पूरी पृथ्वी को ढक लेती। अब फॉरगेटफुल स्नो कैसी होती? बर्फ क्या है जो हमें भुला देगी? देखो बर्फ को अगर आप हाथ में पकड़े तो आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट योर हैंड हैज डिसअपीयर्ड। आप हाथ में बर्फ को रखेंगे तो कुछ क्षण के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ है ही नहीं। तो ऐसी ठंड, ऐसी बर्फ, जिस समय आप स्वयं को, पार्ट्स को, अपनी बॉडी पार्ट्स को भूल जाए। ठीक। तो विंटर केप्ट अस वार्म, ठंड के दिनों में हम अपने आप को गर्म रखते थे। कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, इतनी ठंड होती थी, इतनी बर्फ गिरती थी कि बर्फ, ज्यादा बर्फ की वजह से हम स्वयं को, अपने बॉडी पार्ट्स को, हर चीज को भूल जाते थे। इतनी बर्फ गिरती थी, इसको हमने एंजॉय किया। ये मटेरियलिज्म का सबसे बड़ा। फीडिंग ए लिटिल लाइफ, फीडिंग माने भोजन करना, लिटिल लाइफ कहते हैं कुछ जानवर। ठंड की वजह से मोस्टली एनिमल्स यहाँ से चले जाते, बस कुछ ही जानवर बचते थे। विद ड्राइड ट्यूब्स, ट्यूबर्स, जो सूखी जड़ों को केवल खाया कर, कुछ जानवर रह जाते थे। अधिकतर जानवर जो थे वो हॉट रीजन्स में चले जाते थे, दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। ओके। ट्यूबर्स जो हैं ये रूट्स ऑफ द ट्री होते हैं। ओके। ये तो ठंड में हम क्या करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु के बारे में हम कुछ मालूम ही नहीं। समर सरप्राइज्ड अस, जब गर्मियां आती थी तो वो हमें सरप्राइज कर देती थी, आश्चर्य कर देती, आश्चर्यचकित कर देती। अब ये अस क्यों है? क्योंकि मैरी है और एक उसका फ्रेंड भी है। कमिंग ओवर द स्टेट वर्जर्सी, हम लोग जो थे स्टेट वर्जर्सी में जाया करते थे। ये स्टेट वर्जर्सी क्या है? ये जो है एक प्रकार की झील है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना। इट इज ए टाइप ऑफ लेक दैट इज सिचुएटेड इन जर्मनी। जर्मनी में एक जगह है म्यूनिच, MUNICH, जर्मनी में एक जगह है म्यूनिच, तो वहां पर ये झील है। तो गर्मियों में हम इस झील पे जाया करते और विद ए शावर ऑफ रेन, और वहां पर जो है बारिश की हल्की हल्की जो बौछारें हुआ करती थी, शावर को एंजॉय किया करते। ओके। वी स्टॉप्ड इन दी कोलोड, और फिर हम लोग कोलोड में रुक जाया करते। कोलोड जो है ये एक प्रकार का गार्डन है। गार्डन क्या कहेंगे, एक प्रकार का कुंज टाइप का है, वहां पर पेड़ लगे हैं। इस झील के किनारे किनारे बहुत घने घने पेड़ लगे हैं, वो एक पार्क टाइप का बन गया है, इसे कोलोड कहते हैं। इसको हम कुंज भी कह सकते हैं, शेडी प्लेस ऑफ द ट्री। तो फिर हम लोग जो थे कोलोड में रुक जाया करते एंड बेंट ऑन इन सनलाइट, और जब धूप निकल आती तो फिर से घर की ओर चलते। इनटू द हाफ गार्डन,
फिर हम लोग हाफ गार्डन में पहुंच घूमने जाते थे। ये एक पब्लिक पार्क है, ये भी जर्मनी में है। एंड ड्रिंक कॉफी, हम लोग वहां जाकर कॉफी पीते थे। एंड टॉक्ड और बातें करते थे फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। तो हमें तो स्प्रिंग सीजन का कोई आइडिया ही नहीं है टायरेसिस। व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी? हम तो ठंड का सीजन जानते हैं, हम गर्मी का सीजन जानते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट स्प्रिंग सीजन। क्लियर हो रहा? अब इस तरह से जब वो लेडी कहती है तो टायरेसियस जो है वो एक शब्द उससे उससे पूछने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये जर्मन लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश नहीं। टायरेसियस उससे पूछते हैं कि विन गर्केन रसिन स्टेम आस लिटन एच डच। ये एक जर्मन लैंग्वेज है। इस पूरी लाइन का आप अर्थ नोट कर लीजिए। इसका मतलब है आई एम नॉट रशियन, इतना बिन गेर ने रशियन, मतलब आई एम नॉट रशियन। ओके, स्टेम का मतलब होता है एट ऑल, यानी मैं रशियन नहीं हूँ। ओके, लिटन कहते हैं लिथुनिया, एक जगह है लिथुनिया, ठीक है, मैं लिथुनिया की हूँ। एक डिच, यानी मैं जो हूँ एक जर्मन हूँ। ये पूरा नोट कर लीजिए। इसका होगा पूरा, फिर से चेक करें। आई एम नॉट अ रशियन एट ऑल, ठीक है, आई एम नॉट अ रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुनिया, और आई एम ए रियल जर्मन। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए। अब फिर मैरी, जब मेरी टायरेसियस को बता रही होती कि हमें स्प्रिंग सीजन का कोई नॉलेज नहीं, हम तो बस ठंड के सीजन को जानते, गर्मी के सीजन को। तो उसी समय हमने कहा देखो केवल आंसर है इसमें। अब ये कहती कि मैं रशियन नहीं हूँ, इसके मतलब क्या है कि टायरेसियस ने उस लेडी को बीच में रोक के उससे पूछा होगा कि आर यू रशियन, क्या तुम रशियन हो? तब उस लेडी ने कहा कि वेन गेर केन रशियन स्टेम, आई एम नॉट रशियन एट ऑल, मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लुथीनिया से बिलोंग करती हूँ, और मैं तो एक जर्मन। ये लाइन वो लेडी बोल देती, और उसके बाद फिर वो लेडी अपनी उसी कहानी को कंटिन्यू रखती। ये लाइन समझ गए ये क्यों बोली है? क्योंकि टायरेसियस उससे पूछता है, ठीक है। अब वो लेडी अपनी बात को आगे कहती है कि एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, और जब हम लोग बच्चे थे। कौन है? मैरी है, और उसका कजिन है जो उसका लवर है, ठीक है। तो जब हम लोग बच्चे थे, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, तो हम आर्क ड्यूक के महल में ठहरा था। माई कजिन he took me out on a sledge, मेरा कजिन जो था वो मुझे एक स्लेज में बिठाल कर बाहर घुमाने ले जाता। स्लेज एक प्रकार की छोटी सी गाड़ी होती है जो बर्फ पे चलती है, जिसपे से डॉग्स खींचते हैं, आपने देखा होगा स्लेज। तो माई कजिन, मेरा जो कजिन था, he took me out on a sledge, वो मुझे स्लेज पर बिठाल करके बाहर घुमाने ले जाता। एंड आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर जाती थी। He said, वो मुझसे कहा करता था मैरी। अब ये नाम आया उस लेडी का, जिस लेडी से टायरेसियस बातें कर रहा है, वो ये लेडी है मैरी। तो मेरा कजिन मुझसे कहा करता था कि मैरी मैरी, होल्ड ऑन टाइट, थोड़ा कस के पकड़ो। एंड डाउन वी वेंट, हम लोग नीचे की ओर सरकते चले जाते। इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पर नीचे सरकते चले जाते। देयर यू फील फ्री, वो पहाड़ जहां आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे। यू विल रियलाइज दैट यू हैव कम आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव कम आउट ऑफ वरी एंड हरी लाइफ। आप चिंताओं के जीवन से अपने आप को मुक्त करें,
ऐसा आप महसूस करेंगे पहाड़ों पर। तो हम पहाड़ों पर सरकते थे, स्लाइडिंग कर। आई रेड मच ऑफ द नाइट, रात में हम लोग खूब पढ़ते थे। एंड वो साउथ इन द विंटर, और जब ठंड आती थी तो हम लोग साउथ की ओर चले जाते थे। तो हे टायरेसियस, हमको तो स्प्रिंग सीजन के बारे में कुछ नहीं, हमको तो बस ठंड और गर्मी के बारे में। वी नो ओनली अबाउट मेटेरियलिज्म, हमें मेटेरियलिज्म के बारे में मालूम है, हमें फिजिकल कंफर्ट के बारे में मालूम है, हमें स्पिरिचुअल कंफर्ट के बारे में नहीं मालूम, हमें मेंटल कंफर्ट के बारे में नहीं मालूम। इन चीजों का हमें कोई। तो when Tiresias receives this type of answer from Mary, he is very much shocked। तो टायरेसियस को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो स्वयं से पूछने लगता है कि क्या हो गया है मॉडर्न मैन। व्हाट आर द रूट्स, वो कौन सी मेटेरियलिज्म की जड़ें हैं जिसने मॉडर्न मैन को जकड़ करके रखा है, कि मॉडर्न मैन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ ही नहीं पा रहा। ऐसा अब उस मेरी से मिलने के बाद टायरेसियस थोड़ा अलग हो जाते और फिर वो स्वयं से कहना शुरू कर देते कि व्हाट आर द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान। व्हाट आर द रूट्स, वो कौन सी मटेरियलिज्म की जड़ें हैं, दैट क्लच, जो लोगों को पकड़े। वो कौन सी मटेरियलिज्म की जड़ें हैं जो इंसानों को पकड़े हैं और उन्हें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने से रोक। व्हाट ब्रांचेस ग्रो, अरे कौन सी शाखाएं उग सकती हैं आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, इस पथरीले कूड़ा करकट वाली जमीन से स्पिरिचुअलिटी की कौन सी शाखा उग सकती है। अर्थात इंसान का हार्ट दैट हैज बिकम बेस्ट लैंड, जो स्टोनी है, बेस्ट लैंड है, रबिश है, वहां से स्पिरिचुअलिटी की कोई ब्रांच अब उगी ही नहीं सकती। सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन किसके लिए कहा गया है? ये सन ऑफ मैन कहा गया है एडम के लिए। ध्यान, हम लोग सन हैं, ठीक है। सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन किसके लिए था? एडम। एडम हमने पढ़ा है आपको पैराडाइज लास्ट में। एडम और ईव, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट ह्यूमन, सॉरी द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट वुमन, ठीक है। तो अब मैन को एड्रेस करते हुए टायरेसियस कहते हैं कि सन ऑफ मैन, हे सन, हम लोग जो एडम के सन हैं, हम लोग जो एडम के सन हैं, तो हमें संबोधित करते हुए, हमें एड्रेस करते हुए टायरेसियस कहता है कि यू कैन नॉट से, तुम तो हमें बता भी नहीं सकते हो बसंत ऋतु के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में तुम हमें कुछ बता ही नहीं सकते, और गेस, और ना ही तुम अंदाजा लगा सकते हो। फॉर यू नो ओनली ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, तुम तो बस थोड़ी सी टूटी फूटी मूर्तियों को ही जानते हो, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं। तुम बस केवल आडंबर वाली पूजा करते हो, दिखावे की पूजा करते हो, तुम्हें जो है स्पिरिचुअलिटी का कोई। वेयर द सन बीट्स, अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे शरीर में सूर्य कहाँ पर धड़कता है। सूर्य काय का सिंबल है? ये सोल का सिंबल, यानी द सोल, वेयर द सोल पल्सेट्स, कहाँ पर आपके शरीर में सोल धड़कती है, सोल कहाँ पे धड़क रही है, उसके 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 जीवन का स्रोत क्या है, उसमें उसमें जो लाइट है वो कहाँ से आई है, तुम्हें इसका कोई अंदाज। एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर, याद रखो कि जहाँ पेड़ सूख जाते हैं वहां शरण इंसान को नहीं मिलती। स्पिरिचुअलिटी का पौधा जो सूख चुका है, अब इंसान को यहाँ वेस्ट लैंड में कोई शरण नहीं मिल सकती, कोई शेल्टर नहीं मिल सकती। द क्रिकेट नो रिलीफ, क्रिकेट माने वैसे तो झींगुर होता है,
ए टाइप ऑफ इंसेक्ट होगा, लेकिन यहाँ होगा आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। और प्रकृति की जो चीजें हैं वो हमें अब कोई रिलीफ नहीं देती। एंड द ड्राई स्टोन, ये बेस्ट लैंड में तो बस पत्थर है, वो भी सूखे। नो वाटर, नो साउंड ऑफ वाटर, इन पत्थरों में कहीं भी स्पिरिचुअलिटी के पानी की आवाज ही नहीं। तो Tiresias is very much shocked to see that in the present time the modern men, they have become completely materialistic. The land has become wasteland. There are only stones here. There is no sound of the water of spirituality. And without water, there can be no tree, there can be no vegetation. And if trees are not present, where a person will get shelter if some troubles, sufferings, and problems come to that person. So that's why we all are living on this land. We all suffer a lot because there is no tree of spirituality where we can get shelter from our sufferings, from our pains. So this is the reason that Tiresias is extremely pained. He is extremely sad to see that modern men, they have become completely materialistic, and London has become wasteland. This world has become wasteland, and the heart of modern human being has also become wasteland, where there is no possibility for the plant of spirituality to grow. Clear? किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है कहीं पे तो पूछ लीजिए, जितना हमने पढ़ा। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर जब हाँ, पढ़ा रहे थे डिस्कनेक्ट हो गया, तो 2 लाइन का अर्थ अरे नहीं पता। कौन सा बस डिस्कनेक्ट? ऊपर है बिन बिन गैर करके बिन गैर कहने करके है जो ये अच्छा, रशियन। ये रशियन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे भूल जाएंगे। जी इसको आप नोट करिए। जब वो टायरेसियस उस गर्ल से पूछता है कि आर यू रशियन, तो वो गर्ल जी कहती है आई एम नॉट अ रशियन। नोट करिए, आई एम नॉट अ रशियन एट ऑल। ठीक है, आई एम नॉट अ रशियन एट ऑल। ठीक है, आई कम फ्रॉम लिथुनिया। लिथुनिया एक जर्मनी में प्लेस है। आई कम फ्रॉम लिथुनिया। ठीक है, आई एम ए रियल जर्मन। क्लियर हो गया? जी अब देखिए सर, ये क्या जितना, लैटिन में लिखा हुआ है? ये लैटिन नहीं है, जर्मन है। हालांकि इलियट ने कहीं पे डिस्कस नहीं किया कि ये जर्मन है, लैटिन है, फ्रेंच है, कौन सी है। लेकिन ये जर्मन हम इसलिए इसको मान रहे हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि वो कहती है कि मैं जर्मन हूँ, मैं रशियन नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली ये जर्मन ही लैंग्वेज। क्लियर हो रहा है बेटा? तो ज्यादा करेंगे इसको, एक बार और जी कंफर्म कर लेंगे। वैसे जहां तक हमारा आइडिया है जर्मन लैंग्वेज है, फिर एक बार और देख लीजिए। तो ये बताएं कि जितना हमने जी पढ़ाया है वो क्लियर हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर, तो सेकंड लाइन का भी इसी में आ रहा है, एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ये 2 लाइनों का ये नहीं पता अलग सर। है, ये अलग है, क्योंकि ये इतना तो क्वेश्चन टायरेसियस पूछती, फिर वो अपनी जो कहानी सुना रही थी वो सुनाना शुरू कर देती मेरी। ठीक है ओके, अब कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। जितना हमने पढ़ाया है ये शायद क्लियर हो गया होगा। सर। आज की क्लास अगर किसी ने रिकॉर्ड करी हो, जैसे कल बात हो रही थी, तो आप प्लीज सेंड करवा दीजिएगा। ये कोई बच्ची कह तो रही थी, वंदना आपने रिकॉर्ड की? किसने बेटा रिकॉर्ड? सर वो ममता ने की है। ममता है जुड़ी नहीं इस समय? हाँ ममता है जुड़ी। ममता, हैव यू रिकॉर्डेड दिस क्लास? जी सर। तो ये आप ऐसा करना, भेज देना, चाहे हमारे पास भेज देना, हम ग्रुप पे डाल देंगे। जिन बच्चों ने समझा नहीं इसको वो दोबारा समझ लें। ओके सर। ठीक है, अभी डाल देना। ओके, क्लियर हो गया? अब इसको आप लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, और इसके आगे का हम कल पढ़ाते हैं। अब निकालिए थोड़ी देर ग्रामर, और अगर जो हमने पढ़ाया इसमें कोई डाउट हो कहीं पे भी तो आप तुरंत पूछिए।
क्योंकि वेस्टलैंड को ये समझना बड़ा मुश्किल है ना? और ये आपने शायद खुद पढ़ी होगी, सेल्फ स्टडी की होगी